Hello and welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host, Kriti Mishra. And joining us today on this broadcast is a very special guest, Chairman of Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Mr. Brijlalji. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Sir, it's a watershed moment for India. History has been created. The colonial era laws, IPC, CRPC and Evidence Act, they have been replaced by new criminal bills passed by Parliament of India. Prime Minister, of course, called it a watershed moment, saying that this is going to be citizen-centric and this is the biggest reform perhaps in the criminal justice system of India. Sir, you've been the chairman of the Parliamentary Standing Committee. You're also a career IPS officer. How do you look at this massive, massive development in India? Yeah, really, it is a massive development, and especially for me also. Last year in September 22, I was informed that you are being selected as chairman, Parliament Standing Committee on Home Affairs. I was really surprised. It was my first tenure. At that time, I had only 1 year, 10 months, but I was approved for this August committee of Parliament Standing Committee on Home Affairs. And the most important work of my life, I can say, when I was given the responsibility of examining the criminal justice system, and that too in a record 3 months' time. It was really a challenging task and very, very important work that is going to change the history of criminal justice system, which was made after First War of Independence 1857, and Lord Macaulay made the Indian Penal Code in 1860, then Indian Evidence Act in 1872, and Criminal Procedure Code in 1898. The act, they were mean Dand, Bharatiya Dand Sanhita. But now the bill which have been passed by Parliament and yesterday by Raj Sabha, in which I initiated the debate, in this bill we are giving justice. That is why we call Bharatiya Nyaya Sanhita. And to Criminal Procedure Code, it is called Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. In my debate in my Home Affairs Committee, some senior members say, Nagarik Suraksha, if you translate in English, that will be civil defense. No, sir, it is not a civil defense. Our constitution came into force on 26 January 1950. And the constitution gave to the citizen of India so many things. It prescribed their duties also. And after constitution came into force, then these colonial rules would have been changed. But the party which were in power, they could not do it. But I appreciate the Modi ji, or Honorable Prime Minister Amit Shah ji, who decided to change this criminal justice system. As Modi ji, from the rampart of Lal Killa, said that all the colonial era what I say? Laws. Huh? All the colonial era laws. No, laws should be changed. Because it is symbol of our gulami, slavery. And changing the criminal justice system, it was a big decision. And now since it has been passed, and in due course, the President of India will give her assent and it will become a law. Absolutely, sir. बट मोर इम्पॉर्टेंटली सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए, आपकी कमेटी ने बहुत ऑब्जर्वेशंस दिए. सरकार की सहमति कितनों पे बनी, कितने रिकमेंडेशंस आपके एक्सेप्ट हुए? करीब अधिकतर हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो
एक्सेप्ट की गई। और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही। और उसमें हमारी रिकमेंडेशन में जो मुख्य चीज़ हम लोग लाए, जो इंडियन पेनल कोड में नहीं था, जो हम भारतीय न्याय संहिता में लाए, उसमें सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मर्डर को रखा था कहाँ, 302 पर, और महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार इस सब के और वो थे उसको रखा था 376 पर। तो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी न्याय देने की। उनके पास पहले शुरू में क्या है, उन्होंने राजद्रोह रखा, रानी के खिलाफ अगर बोलोगे तो राजद्रोह। उन्होंने क्या रखा, खजाने के बारे में रखा। उन्होंने क्या रखा, क्वाइनेज के बारे में रखा, वेट एंड मेजर्स के बारे में रखा। लेकिन इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अलग थी। तो पहला जो हम लोगों ने रखा, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार और मानव वध ये दुनिया में सबसे जघन्य क्राइम है, सीरियस क्राइम्स। तो उसको पहले चैप्टर में हम लोगों ने रखा, ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और उसमें जो किया एक चीज़ जो गैंग रेप आया, पहले नहीं था। तो गैंग रेप में किया, अगर नाबालिग बच्ची है, 18 साल से कम एज है, तो इट में भी पेनल्टी में गो अप टू डेथ। और अगर अदर महिला गैंग रेप होता है तो उसमें आजम कारावास, मिनिमम 20 ईयर्स। तो ये चीज़ हम लोगों ने वेमेन और चिल्ड्रन के बारे में, ये न्यू थिंग थी। दूसरा कई चीज़ें थी जो आज की ज़रूरत थी, जैसे टेररिज्म। पहली बार टेररिज्म को डिफ़ाइन किया गया। पहले टेररिज्म डिफ़ाइन नहीं था। पहले जो था वो था राजद्रोह 124A, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था। तो हम लोग उसको डिलीट किए। लेकिन देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो देशद्रोह को हमने डिफ़ाइन किया। और देशद्रोह के बारे में देशद्रोह, क्योंकि राजद्रोह था वो व्यक्ति सेंट्रिक था और ये देश सेंट्रिक है। तो देशद्रोह को लाया और उसमें पेनल्टी हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया है अप टू डेथ पेनल्टी। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, वो है टेररिज्म। तो टेररिज्म को मैंने पहले बताया, उसको डिफ़ाइन किया और उसमें वो भी जोड़ा कि भारत के खिलाफ जो वेजिंग वॉर एक शब्द होता है, वो करता है भारत की इंटीग्रिटी के प्रति, वो करता है, साजिश करता है। और साजिश चाहे देश में करे चाहे विदेश में करे, वो भी हम लोगों ने रखा। और देश की आर्थिक व्यवस्था को भी जो तोड़ने का प्रयास करता है उसको भी रखा। उसके बाद एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। बड़े बड़े माफिया रहे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे बॉम्बे हो और उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, बिहार हो, और माफिया सरकार चलाते थे। उनकी पैरेलल इकोनॉमी थी, रंगदारी वसूली जाती थी, एक्सटॉर्शन, और 1000 एंड 1000 करोड़ उन्होंने अर्न मनी। और इसके साथ साथ वो माननीय बन गए, एटलीस्ट मैं अपने स्टेट में कह सकता हूँ। ऐसे ऐसे माफिया वो माननीय बने, करेला और नीम चढ़ा, बगल में बिहार स्टेज है। तो ये हम लोगों ने जो वो लोगों से एक्सटॉर्शन करते थे, लूटते थे, ज़मीनें कब्जा करते थे। तो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट था, 1986 में आया था। महाराष्ट्र के पास मकोका था और उसी में योगी आदित्यनाथ जी ने जितने बड़े माफिया थे सबको अंदर कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी 1000 एंड 1000 करोड़ हैज़ बीन कन्फिस्केटेड। तो वो चीज़ सेंट्रल एक्ट में नहीं था, जिस स्टेट के पास नहीं था। तो ये ज़रूरी था, ऑर्गेनाइज क्राइम हम लाए। तो ऑर्गेनाइज क्राइम लाए हम लोग और वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक और था महिलाओं से संबंधित, ज़्यादा था, हालांकि किसी के साथ हो सकता है बट ज़्यादातर महिलाओं के। स्नैचिंग, आप जा रही हैं, आपकी चेन स्नैच हो गया, आपका पर्स स्नैच हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने, जो पुलिस में लिखाने जाते थे तो पहले तो कहते अच्छा एक एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट नहीं लिखते थे, बहुत लिख दिया तो चोरी का लिखा। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग लाया स्नैचिंग का अपराध, पर्स स्नैच करना, मोबाइल से स्नैच करना, इसको हम लोगों ने लाया। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देन मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आज से नहीं है, बहुत पहले से। आप देखें कश्मीर में 90 में तो नरसंहार हुआ। आपके दिल्ली में 1984 में मिसेस गांधी, हमारी प्राइम मिनिस्टर के डेथ के बाद जो तांडव इसी राजधानी में हुआ।
आपके बड़े बड़े दंगे हुए 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ, 400-500 लोग मारे गए। नेली दंगा आसाम में हुआ, ये सब कांग्रेस के रिजिम में दंगे हुए थे। तो मॉब लिंचिंग की बात तो पार्टियां कहती थीं, विशेषकर कांग्रेस, लेकिन कभी उन्होंने कानून नहीं बनाया। अब हम लोगों ने मॉब लिंचिंग का जो लाया, और वो मॉब लिंचिंग का बड़ा इम्पॉर्टेंट कानून है, और उसमें भी हम लोगों ने डेथ पेनल्टी तक का दिया है। अगर कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के नाम पर इसके ऊपर कोई हमला करता है, लेकिन उसमें जो मेन रोल प्लेयर है उसको हम लोगों ने डेथ पेनल्टी, लेकिन उसमें 200-300 आदमी हो सकते हैं, 400 आदमी हो सकते हैं, लेकिन जिसका कम रोल है उसी तरह से उसकी सज़ा भी कम किया। ये नहीं कि 400 लोग हैं तो सबको फांसी सजा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देन एक होता था काजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस रैश ड्राइविंग। इसमें आप देखेंगे जितने मर्डर होती है, मर्डर से 6 टाइम्स ज़्यादा लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, और मेनली वो रोड एक्सीडेंट होता है। और उसमें जो मरते हैं वो यंग लाइफ होती है, 18 से 45, 18 to 45 ये एज होती है। तो हम लोगों ने देखा अंग्रेज़ों के समय में गाड़ी उन्हीं के पास थे, तो मर गए आपकी गाड़ी से 4 मर गए, तब भी आपको थाने से जमानत होगी, और मैक्सिमम सज़ा थी 2 साल की। लेकिन इसको हम लोगों ने बढ़ा कर किया 2 से 5 साल, और अगर डेथ हो गई तो उसमें अप टू 10 ईयर्स किया है, और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। एक्सीडेंट हुआ तो 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर एज ए गुड सिटीजन आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आप थाने को इन्फॉर्म कर दें, आप उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाएं, तो पेनल्टी कम है, 2 साल हो सकती है, 2 से 3 साल हो सकती है। आप थाने को इन्फॉर्म कर दें। लेकिन अगर करके आप भाग गए, जैसे आजकल बड़ा फैशन है लोगों का तेज़ गाड़ी चलाना, मोबाइल करना, रैश ड्राइविंग। अभी हमारे लखनऊ में हुआ, एक एडिशनल एसपी का इकलौता बेटा, और गाड़ी से उसको कुचल दिया गया। तो ऐसे केसेस में अप टू 10 ईयर्स की सज़ा रखी है, क्योंकि वो बहुत कम सज़ा थी। उसके बाद आती है एक हम लोगों ने कम्युनिटी सर्विस छोड़ा। छोटे मोटे जो अपराध हैं, गरीब आदमी जाता है, जेलें भरी हुई हैं, ज़मानत का पैसा नहीं है, तो उसके सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस प्रिस्क्राइब किया है। उसको एक पछतावा होगा जी, और एक उसको काम भी दिया गया। तुम्हें काम दिया गया कि जाइए नगर पालिका को, उसमें माली का काम करिए, चौकीदार का काम करिए। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो जाइए वहाँ पढ़ाइए। तो इस टाइप का किया गया। इससे जेलें हमारी कम होगी, और कम्युनिटी सर्विस का विदेशी कंट्रीज में था वो किया जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ किया हम लोगों ने, समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल 3 साल तक की जो सज़ा है उन केसेज में समरी ट्रायल होने से 40% कोर्ट पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। तो उसके कम होने से ये फ़ायदा होगा कि कोर्ट पर भार कम होगा, जेलों में लोग कम रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रोविजन किया है। अब आता है जिसको पहले CRPC कहा जाता है, उसको लिया है मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस संहिता में एक चीज़ सबसे बड़ी सिटीजन आता है अपना FIR लिखाना। जी। तो अक्सर FIR में ये होता है कि साहब मेरी FIR नहीं लिखा। आज भी हमारे पास लोग आते हैं मेरी FIR नहीं। अब FIR ये किया गया 0 FIR। आपके पास कहीं घटना हो देश में, कहीं भी आप लिखा सकती हैं, और 24 आवर में वो FIR जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वो पहुंच जाएगा। FIR आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिखा सकती हैं। और जो अडल्ट्रेशन एक अपराध है, फूड अडल्ट्रेशन, आप दूध क्या पी रही हैं आपको ये नहीं मालूम क्या है इसमें, तो इसमें हम लोगों ने पहले था मैक्सिमम 6 मंथ की सज़ा, अब हमने किया है मिनिमम 6 मंथ की। 6 महीने तो होनी है, और जैसा अपराध होगा फूड एंड ड्रग में उसी तरह से उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। तो एक इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। और सबसे बड़ा फोरेंसिक साइंस का प्रयोग। नेशनल यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, 8-9 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और इसमें 2-3 साल में 35,000 एक्सपर्ट्स निकलेंगे, और हर जिलों में फोरेंसिक साइंस लैब का वैन होगा जो घटनास्थल पर जाएगा, तुरंत उसको करेगा, जांच करेगा। तो इस तरह से तमाम इसमें, और कोर्ट पर भी कई चीज़ किया गया है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन का किया गया वो त्वरित हो 90 दिन में,
बहुत केसेज अगर 90 दिन में ज़्यादा लग रहा है तो कोर्ट की परमिशन से 180 दिन, चार्जशीट लग गई तो अदालत को आपको 120 दिन में उसका चार्ज फ्रेम करना होगा। उसके बाद ट्रायल होगा। ट्रायल जब ख़त्म हो गया तो आपको 45 दिन में जजमेंट देना ज़रूरी होगा। यह नहीं कि जजमेंट रिजर्व्ड और महीनों महीनों सालों पर बढ़ा है। बिल्कुल सर। तो काफ़ी हम लोगों ने ई कोर्ट का किया है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत प्रयोग किया है। और एविडेंस एक्ट में सबसे पहले हम लोग ने डिफाइन किया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। वो पहले नहीं था, दस्तावेज के तौर पर उसको शामिल किया गया है। उसमें चाहे ईमेल हो, चाहे आपका नेट हो, आपके मोबाइल पर कोई आए, उसको हम लोगों ने इसमें किया है। और उसमें कहीं टेम्परिंग ना हो, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है कि वो चेक करेगा कि इसमें एविडेंस में टेम्परिंग नहीं है और एक सर्टिफिकेट देगा तब। तो इस तरह से आजकल तो हर क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग होता है, मोबाइल का, नेट का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ बड़ा एक डेवलपमेंट है। तो इससे ये सिटीजन सेंट्रिक लॉज हैं और इससे लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा और सीरियस केसेज में भी 3 साल में ट्रायल पूरा हो जाएगा और लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो कहा जाता है जस्टिस अगर देर हो गई तो वो जो है तो वो जो है उसको वो तो ज़्यादा अन्याय है कि आप डिले करके, जैसे मैंने कल राज्यसभा में कहा था कि फूलन देवी ने जो घटना की थी बेहमई कांड, नरसंहार, 22 लोग मारे गए थे। मैं उसके बाद तुरंत बाद गया था एडिशनल एसपी जालौन और वो हुआ था वैलेंटाइन डे पर जब 20 महिलाएं विधवा हो गई थी, 14 फरवरी 81। और आज तक उसका जजमेंट 42 साल हो गया, नहीं आया है। 48 मुलजिम थे, 4 बचे हैं केवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जैसा कि कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और लगातार जैसे प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं कि सिटीजन सेंट्रिक हमें सब कुछ बनाना है, ईज ऑफ लिविंग इंश्योर करना है। ट्रूली एज यू सेड दैट दिस is a massive development, a watershed moment in India's history. But on that note, thank you so much for sharing your perspective with us. Thanks a lot for talking to Sunset Television. Thank you very much. With camera person Namrendra and camera assistant Sunil, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television.